Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture, we have discussed about a chemical equation and a balanced and unbalanced chemical equation. Now we are going to study about how can we balance an unbalanced chemical equation. To balance a chemical reaction, we commonly use trial and error method. In this method, firstly, we will write an unbalanced chemical equation and count the number of atoms of each element on both sides of arrow. We will work with one element at a time and then multiply the symbol with a suitable integers. Where the number of atoms of a particular element is less, try to balance this element on both sides of the equation. As in this equation, you can see that there are two nitrogen atoms and here the nitrogen atom is less. So we can balance nitrogen atoms by putting here 2. Then there are 2 hydrogen atoms, but in products there are 3 hydrogen atoms. The number of hydrogen atoms in reactants is less, then we will multiply this hydrogen atom with a suitable integer. When we multiply 3 hydrogen atoms with 2, then we will get 6 hydrogen atoms. So in reactants, when we multiply 2 with 3, then we will get 6 hydrogen atoms. So the number of hydrogen atom is also balanced in this equation. There are 2 nitrogen atoms in reactants, while in products there are also 2 nitrogen atoms. And there are 6 hydrogen atoms in reactants, and in products there are also 6 hydrogen atoms. When we multiply 3 with 2, then we will get 6. So in this way we can balance a chemical equation. सो स्टूडेंट्स, किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तब्दील करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उस मेथड को कहा जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। इस मेथड के मुताबिक सबसे पहले हम एक गैर मतवाज़न कीमियाई मसावात लिखेंगे और फिर हम इस मसावात में एरो के दोनों तरफ एलिमेंट्स के एटमों की तादाद मालूम करेंगे और एक ही वक्त में सिर्फ एक ही एलिमेंट पर गौर करेंगे और एरो के उस जानिब जहां एलिमेंट के एटमों की तादाद कम हो उसको हम किसी मुनासिब अदद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सबसे पहले सबसे छोटे अदद से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। जैसे इस इक्वेशन में आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम नाइट्रोजन एटम को देखेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम्स मौजूद हैं, जबकि प्रोडक्ट्स में हमारे पास नाइट्रोजन का सिर्फ 1 एटम मौजूद है। तो प्रोडक्ट्स में मौजूद नाइट्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम इन नाइट्रोजन एटम्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ये बताएंगे कि प्रोडक्ट्स में भी 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं जबकि रिएक्टेंट में भी 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं। नेक्स्ट हम जिस एलिमेंट पर गौर करेंगे वो है हाइड्रोजन। रिएक्टेंट में हमारे पास 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं जबकि प्रोडक्ट्स में हमारे पास टोटल 6 हाइड्रोजन मौजूद हैं, क्योंकि इन 3 हाइड्रोजन्स को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 हाइड्रोजन्स आएंगे। और रिएक्टेंट में हमारे पास कितने हाइड्रोजन्स हैं? 2 हाइड्रोजन्स। तो इन 2 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिएक्टेंट में 6 हाइड्रोजन्स पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तब्दील कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड अबाउट सम रूल्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। Our first rule is write an unbalanced chemical equation and count the number of atoms of each element on both sides of the arrow. Work with one element at a time. Multiply the symbol or formula with suitable integers on that side of the equation where the number of atoms of a particular element is less, and try to balance that element on both sides of the equation. Start multiply with relatively small number. Repeat the process for all elements one by one and balance the diatomic molecules at the end. In exercise, the long question number 5.10 is write down the rules for balancing a chemical equation. The answer of this question is on page number 66. In the answer of this question, you will state all these rules. तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने कीमियाई मसावात को मतवाजन करने के जो असूल हैं उनको डिस्कस किया। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है कि गैर मतवाजन मसावात को लिखकर निशान तीर की दोनों जानिब हर एलिमेंट के एटमों की तादाद मालूम करें, एक ही वक्त में सिर्फ एक एलिमेंट पर गौर करें। मसावात की उस जानिब किसी सिंबल या फार्मूला को 2, 3, 4, 5 वगैरह किसी भी मुनासिब अदद के साथ ज़रब दें जहां पर एलिमेंट के एटमों की तादाद कम हो। सबसे पहले छोटे अदद से ज़रब देना शुरू करें। एक एक करके तमाम एलिमेंट्स के एटमों की तादाद को मसावात की दोनों जानिब बराबर करें। 2 एटमी मॉलिक्यूल्स मसलन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन को सबसे आखिर में मुतवाज़न करें। एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5.10 है कीमियाई मसावात को मुतवाज़न करने के रहनुमा असूल तहरीर करें। इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 66 पर है।
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, जिसमें आप इस सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5.5 है। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी जो मंदरजा झेल इक्वेशंस हैं इनको बैलेंस करें। इन इक्वेशंस को बैलेंस करते हुए जो हमने रूल्स पढ़े हैं वो हम यूज़ करेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन है पहले उसको बैलेंस करते हैं। हमारा जो फर्स्ट रूल था वो था कि सबसे पहले तो एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें और उसके बाद एटम्स की बैलेंसिंग के दौरान सिर्फ एक वक्त में एक ही एटम पर गौर करें। तो यहाँ पर हम पहले कैल्शियम को बैलेंस करते हैं। रिएक्टेंट्स में हमारे पास कैल्शियम का सिर्फ एक एटम मौजूद है और प्रोडक्ट्स में भी हमारे पास कैल्शियम का एक एटम मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि कैल्शियम एटम बैलेंस्ड है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोजन एटम्स को। HCO3 में ब्रैकेट के बाहर जो आपको 2 नज़र आ रहा है ये शो कर रहा है कि हाइड्रोजन एटम्स 2 हैं और कार्बोनेट आयंस भी 2 हैं। तो अभी हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं। तो ब्रैकेट के बाहर 2 हमें ये शो कर रहा है कि हाइड्रोजन एटम्स की तादाद 2 है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है। तो टोटल हमारे पास हाइड्रोजन एटम 3 हो गए। लेकिन प्रोडक्ट्स में H2O है और हाइड्रोजन एटम्स जो हैं उनकी तादाद 2 है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी जो फॉर्मूला या सिंबल है हमारे पास उसको हमने किसी सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि दोनों तरफ एटम्स की जो तादाद है वो बराबर हो सके। सबसे पहले हम सबसे छोटे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स की तादाद कितनी हो जाएगी? 4। लेकिन रिएक्टेंट्स में हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स 3 हैं। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट में एटम्स की तादाद कम है। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हम HCl जो है, अगर हम HCl को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर अब हम हाइड्रोजन एटम्स को काउंट करें तो रिएक्टेंट्स में हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स ये वाले और 2 हाइड्रोजन एटम्स ये वाले। तो टोटल हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। जबकि प्रोडक्ट्स में वाटर मॉलिक्यूल्स को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वहाँ पर भी टोटल 4 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन एटम्स भी बैलेंस हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम बैलेंस करेंगे कार्बन एटम्स को। रिएक्टेंट में हमारे पास कार्बन एटम्स 2 हैं क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 ये शो कर रहा है कि अंदर मौजूद जितने भी एटम्स हैं उनको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कार्बन एटम के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स डैट के कार्बन एटम 1 है। अगर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। तो रिएक्टेंट में हमारे पास 2 कार्बन एटम्स हैं और प्रोडक्ट्स में हम देखेंगे कि CO2। हमने रूल्स में डिस्कस किया था कि एरो के जिस साइड पर एटम्स की तादाद कम हो तो बैलेंस करने के लिए उस साइड वाले एलिमेंट को या एटम को हम किसी सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। रिएक्टेंट में 2 कार्बन एटम्स हैं जबकि प्रोडक्ट्स में 1 कार्बन एटम है। तो प्रोडक्ट्स वाली साइड पे कार्बन एटम्स की तादाद कम है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन एटम्स 2 हो जाएंगे और हमारे पास रिएक्टेंट में भी 2 कार्बन एटम्स है। इसका मतलब ये कि कार्बन एटम बैलेंस हो गए हैं। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 लिख देंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास एटम है जिसको हमने फोकस करना है वो है ऑक्सीजन एटम्स। कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स मौजूद हैं और ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है। तो 3 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल 6 ऑक्सीजन एटम्स आएंगे क्योंकि 3 2 आर 6। अब प्रोडक्ट्स में देखेंगे कि ऑक्सीजन एटम बैलेंस हैं या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 लिखा हुआ है, इन वाले ऑक्सीजन एटम्स के 2 को हम इन 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो H2O के साथ भी जो 2 है वो शो कर रहा है कि H2O के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर ऑक्सीजन एटम 1 है और दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर भी ऑक्सीजन एटम 1 होगा तो हमारे पास टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे। 4 ऑक्सीजन एटम कार्बन डाइऑक्साइड के और 2 ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के। तो प्रोडक्ट्स में हमारे पास टोटल 6 ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों में ऑक्सीजन एटम्स की तादाद बराबर है। नेक्स्ट जो हमारे पास एटम बच गया है वो है क्लोरीन। HCl के साथ जो 2 है वो शो कर रहा है कि HCl के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। जब दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर क्लोरीन का एक एक एटम मौजूद है तो हमारे पास टोटल क्लोरीन के एटम्स होंगे 2। प्रोडक्ट्स में देखें तो CaCl2 जो है इसके साथ क्लोरीन के 2 एटम्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये कि क्लोरीन एटम्स भी बैलेंस हो गए हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इक्वेशन नंबर 2।
In this equation, you can see that the number of sodium atoms on both sides of the arrow is equal. Then we move towards second atom, which is bromine. In reactants, you can see that there are only one atom of bromine, while in products there are two atoms of bromine. तो रूल्स में हमने पढ़ा था कि जिस साइड पे एटम्स की तादाद कम हो उस साइड को हमने किसी सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है और सबसे पहले सबसे छोटे डिजिट से स्टार्ट करना है। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास ब्रोमीन के कम एटम्स मौजूद हैं, इसलिए इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम सोडियम ब्रोमाइड को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रोमीन आइटम जो है वो बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 2 ब्रोमीन एटम्स और प्रोडक्ट्स में भी हमारे पास 2 ब्रोमीन एटम्स है। ब्रोमीन एटम्स बैलेंस हो गए, लेकिन अब जो सोडियम एटम्स हैं जो हमने पहले देखा था कि बैलेंस है, अब हमें पहले उनको बैलेंस करना है। रिएक्टेंट में हमारे पास 2 सोडियम एटम्स हैं और प्रोडक्ट्स में हमारे पास 1 सोडियम एटम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अब हम प्रोडक्ट्स में जो मौजूद सोडियम एटम्स हैं उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम प्रोडक्ट्स में मौजूद सोडियम एटम्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में सोडियम एटम्स की तादाद बराबर हो गई है। अब जो हमारे पास बचा वो है क्लोरीन। रिएक्टेंट में हमारे पास 2 क्लोरीन एटम्स मौजूद हैं और प्रोडक्ट्स में भी हमारे पास 2 क्लोरीन एटम्स मौजूद हैं। NaCl के साथ 2 लिखा हुआ ये शो कर रहा है कि सोडियम एटम्स भी 2 हैं और क्लोरीन एटम्स भी 2 हैं। तो इस तरह से इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहले तो हम आयरन एटम्स या फेरस एटम्स पर फोकस करते हैं। रिएक्टेंट में हमारे पास 1 आयरन एटम मौजूद है और प्रोडक्ट्स में हमारे पास 2 हैं। तो कम साइड वाले एटम्स को हमने मल्टीप्लाई करना होता है, तो अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आयरन एटम्स हमारे पास बैलेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन एटम्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ आप देखें कि ऑक्सीजन एटम्स जो है वो रिएक्टेंट में हमारे पास 2 हैं और प्रोडक्ट्स में 3 हैं। अब रिएक्टेंट में मौजूद ऑक्सीजन एटम्स की तादाद कम है, इसको हम किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये इक्वल हो जाए। तो अगर हम रिएक्टेंट में जो ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं अगर हम इनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे 4, जबकि प्रोडक्ट्स में हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं 3। तो ये बैलेंस नहीं हो रहे। हम फिर अगले डिजिट की तरफ मूव कर जाएंगे। अब हम अगर ऑक्सीजन एटम्स को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो 3 2s are 6 ऑक्सीजन एटम्स, जबकि प्रोडक्ट्स में हमारे पास टोटल 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। अब हमारे पास प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन एटम्स की तादाद कम है। अगर हम इन 3 ऑक्सीजन एटम्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट्स में हमारे पास हो जाएंगे 6 ऑक्सीजन एटम्स। तो इस तरह से ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि अगर हमने प्रोडक्ट्स में मौजूद जो आयरन के एटम्स थे उनको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आयरन एटम्स की तादाद हो जाती है हमारे पास 4। रिएक्टेंट में हमारे पास आयरन का सिर्फ 1 एटम मौजूद है, तो इस आयरन एटम को भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ एटम्स की तादाद इक्वल हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। इस इक्वेशन में पहले हमने नाइट्रोजन एटम्स पर फोकस करना है। रिएक्टेंट में हमारे पास नाइट्रोजन का 1 एटम मौजूद है और प्रोडक्ट्स में नाइट्रोजन एटम जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर है और बाहर 2 है, जो शो कर रहा है कि नाइट्रोजन एटम्स की तादाद 2 है। तो इस वजह से रिएक्टेंट में मौजूद नाइट्रोजन एटम्स को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नाइट्रोजन एटम्स बैलेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट हम फोकस करेंगे हाइड्रोजन एटम्स पर। अब हाइड्रोजन एटम्स जो है वो हमारे पास कितने हैं, ये वाले हाइड्रोजन एटम्स के साथ 4 लिखा हुआ है, तो 4 2s are 8 प्लस नेक्स्ट जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो 1 है। जब 1 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। फिर हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स हैं 2, तो टोटल कितने हाइड्रोजन एटम्स हो गए 12। प्रोडक्ट्स में मौजूद हाइड्रोजन एटम्स को देखते हैं। 4 2s are 8 प्लस 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब ये जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स वाले, अगर हम इनको 8 में प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 10। लेकिन रिएक्टेंट में हमारे पास टोटल 12 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। अब हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स की तादाद हो गई है 4, तो 8 + 4 = 12। इस तरह से हाइड्रोजन एटम्स भी बैलेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट हम फोकस करेंगे ऑक्सीजन एटम्स पर। ऑक्सीजन एटम कितने हैं हमारे पास 2 + 4 टोटल हो गए 6। और प्रोडक्ट्स में हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं 4 + 2 6। दोनों साइड्स पे ऑक्सीजन एटम्स की तादाद बराबर है। अब जो एटम बच गया वो है सल्फ़र।
रिएक्टेंट में हमारे पास सल्फ़र का एक एटम मौजूद है और प्रोडक्ट्स में भी हमारे पास सल्फ़र का एक एटम मौजूद है। तो दोनों साइड्स पर सल्फ़र एटम्स की तादाद बराबर है, तो सल्फ़र एटम्स भी बैलेंस हो गए। अब हम अपनी अगली इक्वेशन को देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में आप देखें, पहले देखते हैं जिंक एटम्स को। दोनों साइड्स पर जिंक एटम्स की तादाद बराबर है, तो जिंक एटम्स बैलेंस है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन एटम। रिएक्टेंट में हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम मौजूद है, जबकि प्रोडक्ट्स में हमारे पास हाइड्रोजन के दो एटम्स मौजूद हैं। तो कम साइड वाले एटम्स को हमने मल्टीप्लाई करना होता है, तो रिएक्टेंट में मौजूद हाइड्रोजन एटम्स को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन एटम्स हो गए और प्रोडक्ट्स में भी 2 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। नेक्स्ट है क्लोरीन। रिएक्टेंट में 2 क्लोरीन एटम्स मौजूद हैं और प्रोडक्ट्स में भी 2 क्लोरीन एटम्स मौजूद हैं। तो इस तरह से जो ये वाली इक्वेशन है, इसको हम बैलेंस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेसन आपका यहीं तक है। एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, तो इसलिए आपने इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।